Hello students, so ready for the lecture? Dear children, today we are going to solve exercise from the chapter carbon compounds. So let's start. Dear children, in the exercise they have given us first question as match the pairs. But only one thing I would like to tell you, if you have not seen the previous videos of this chapter, then you first go and see those chapters. I have discussed every topic in quite detailed manner. So you first understand those things properly and thereafter you see this video. And if you have seen it, then let's begin with the solution. So children, in the first question they are asking us to do the match the pairs. Match the pairs karna hai. Group A and group B, which one are for each other? Let us see. Now C2H6. C2H6. C2 means 2 carbon system. H6 matlab 6 hydrogens. This way. Now children, you can easily see that we are able to make the bonds. This is corresponding to the formula CnH2n plus 2. C2H2n plus 2 is at the place of n. If I am writing 2, it turns out to be C2H6. Means it is a alkane. It is what? Alkane. And every alkane is corresponding to the formula CnH2n plus 2, and that alkane is saturated. Alkane is what? Saturated. So we have got here our first answer. This is A. Children, saturated word we are using just to indicate that there is single bond between 2 carbon atoms. So here very clearly you can see that between these 2 carbon atoms there is one single bond. And rest of the bonds are completed by the hydrogen atoms. So that is known as the alkane. And given formula C2H6 is just following this rule. What is that rule? CnH2n plus 2. Cn means C is 2. H2n plus 2. N is this number. This 2 plus 2. So it turns out to be C2H6. Correct? So all these points already we have discussed in the previous videos. If suppose anyone has not seen that one, so you please see that. Children, after getting the first answer, now it is time to move for the next. Let us see. Second option given is C2H2. Now C2H2. Children, we have got the formula for alkane as CnH2n plus 2. For alkene CnH2n, and for alkyne CnH2n minus 2. This is the formula we are having. Now C2H2 formula, if suppose I consider N as 2, CnH2n, so this 2 I will be getting 2 by writing CnH2n minus 2. Let's check. I am keeping at the place of N as 2. So this is 2 into 2 minus 2. This becomes 2 to the 4, 4 minus 2 again 2. मतलब
इसने किस फॉर्मूले को कंप्लीट करके दिखाया बच्चों? अल्काइन के फॉर्मूले पर ये सूट हो रहा है, ठीक है ना। तो अल्काइन के फॉर्मूले को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो वी आर नाउ गोइंग टू राइट C2H2 and there will be 3 bonds between carbon atoms. Correct? Now here clearly you can see that there are 2 carbons and there are 2 hydrogens. So this is the formula of alkyne. In alkyne we find 3 bonds between 2 carbon atoms. In case of alkyne, what do we find? We find 3 bonds between 2 carbon atoms. So children, here we are now going to write C2H2, that is triple bond. Correct? Now CH4O. CH4O, let us see उससे रिलेटेड हमें क्या इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों। CH4, they have written this way, CH4O। अभी बच्चों तुम्हें पता है कि कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड, है ना। एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो मैंने यहाँ पे H लिख दिया। अभी मेरे पास देखो 4 में से 3 हाइड्रोजन तो लिख दिए मैंने, फिर क्या रह गया? एक कार्बन भी लिख दिया और हाइड्रोजन भी लिख दिया। बच क्या गया था? अभी यही बचा था ना। फिर से देखो CH4O है मेरे पास। क्या है बच्चों? CH4O। C मैंने यहां लिख दिया और 3 हाइड्रोजन यहां लिख दिए। तो उसके बाद मेरे पास जो बचेगा वो यही बचेगा। इसको फिर मैं यहां लिख देता हूं। अब ये क्या बन गया बताओ? अल्कोहल। ये क्या बना है? अल्कोहल। सो अल्कोहल अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पर अल्कोहल हमें कहीं दिया है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एन अल्कोहल, है ना। ये सेकंड वाला पॉइंट, तो ये आंसर हुआ आपका सेकंड वाला। अब C3H6, तुम्हें पता है बच्चों अल्कीन और अल्काइन। अल्कीन का फॉर्मूला है CnH2n। क्या फॉर्मूला है? CnH2n। मतलब जितना कार्बन है उसका डबल क्या है? हाइड्रोजन। जितना कार्बन है उसका डबल क्या है? हाइड्रोजन। कार्बन कार्बन के बीच में यहां पे अल्कीन में डबल बॉन्ड हमें दिखेगा ही दिखेगा। CnH2n, C3H6, C3H2 तो C3H6। अब इसको कैसे हम लिखेंगे? 1 2 3, कहीं डबल बॉन्ड बना दिए। अभी सिंगल, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, सारे हाइड्रोजन बच्चों। अब तुम काउंट कर लो, तुम्हें कितने हाइड्रोजन दिख रहे बताओ। यहाँ पे काउंट करके बताओ मुझे। 1 2 3 4 5 and 6। ठीक, तो ये C3H6 का फॉर्मूला था और ये C3H6 का फॉर्मूला एक डबल बॉन्ड वाली सिचुएशन को बता रहा है, मतलब अनसैचुरेटेड। याद रखो, कार्बन कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? अनसैचुरेटेड। तो हमने इसको यहां से कनेक्ट कर देना है। और एक बात मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं बच्चों, ऑफ कोर्स जब आप मैच द कॉलम याद करते हो तो आप खाली इतना याद करते हो, ए का आंसर इतना है, बी का आंसर इतना है, लेकिन उसकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग भी होना जरूरी है, बिकॉज यू आर स्टडिंग साइंस। और साइंस में अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी भी बच्चे ने ये वीडियोस पहले के चैप्टर का जो डिस्कशन मैंने किया है वो नहीं देखा है, तो ये वाला वीडियो देखने से पहले आप इसके पहले के जितने भी वीडियोस मैंने इस चैप्टर पे बनाए हैं
उसे एक बार जरूर से जरूर देखो, तब ये सब कुछ आपको बहुत आसान लगेगा। तो हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किया, आप सब इसकी प्रैक्टिस करो। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस सेकेंड क्वेश्चन में लिखा गया है ड्रॉ एन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर मैंने बच्चों लेक्चर के दौरान कई बार बनाया था। जब हम लेक्चर चैप्टर डिस्कस कर रहे थे कई बार हमने डिस्कस किया था इसको। आपके एक्सरसाइज में ये सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलो अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। अपने आंसर में आप क्या करोगे, यू हैव टू फर्स्ट राइट दैट व्हाट यू आर ड्रॉइंग। जो ड्रॉ कर रहे हो उसका नाम लिख दो, मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है बच्चों CH4। अब CH4 का मतलब देयर आर 4 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 कार्बन एटम। ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स है और सेंटर में 1 कार्बन। अब मुझे पता है बच्चों कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है वो 4 बॉन्ड बनेंगे, और ये बॉन्ड जब बनेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनते हैं। कैसे बनते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का ये वाला बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बना है। तो यहां पे जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हम इस तरीके से एक डॉट से दिखा सकते हैं। यही काम तुम्हें यहां भी कर लेना है, वही काम यहां भी करना है, और वही काम यहां भी कर लेना है। यह हुआ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हमें अपना आंसर लिखते समय यही करना है बस। कोई सर्कल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, इसमें खुद कहा हुआ है विदाउट शोइंग द सर्कल्स। हमें कोई सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, हमें खाली ये बता देना है कि भाई यहां पे जो कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे थे, ये कोवैलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, किस तरह से रखे गए हैं, हाउ दे आर बीइंग अरेंज्ड। 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक बॉन्ड बन गया था, वो तुमने यहां लिखा। फिर 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके ये बॉन्ड बना, हमने यहां लिख दिया। उसी तरीके से ये और उसी तरीके से ये। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद अब हम अगले ए को मैंने सॉल्व किया है। अब बी की तरफ आगे बढ़ते हैं। बी ये जो है इथेन है। इथेन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों? C2H6। ठीक है, अब इथेन C2H6 का मतलब ये हुआ, हम इस तरह से लिखेंगे देयर आर 2 कार्बन एटम्स एंड देयर आर 6 हाइड्रोजन एटम्स। नाउ चिल्ड्रंस, we know that every one single covalent bond is formed because of the 2 electrons. This bond is formed by the sharing of 2 electrons. Each of the participant is providing one electron needed for the bonding. Each of the participant is sharing one electron for the bonding. Similarly, for other hydrogen atoms, we will be writing one electron from hydrogen and 1 from carbon. This way, the bonds are getting completed.
and make sure that position of electron is between carbon and hydrogen. इससे दूर नहीं ले जाना है तुम्हें, जहां एटम है बराबर उसकी के बीच में. ऐसे अगर किसी बच्चे ने यहां इलेक्ट्रॉन लिख दिया तो वो गलत होगा. ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बराबर इसी जगह पर रहनी चाहिए, सब एक लाइन में आने चाहिए. ठीक है बच्चों, तो ये हमने बच्चों ये है मिथेनॉल. इसे हम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल. अब बच्चों इस मिथेनॉल में या मिथाइल अल्कोहल में कार्बन के जितने बॉन्ड आप देख रहे हैं वो सब के सब कोवैलेंट बॉन्ड. इवन यहां भी क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड. तो कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है वो दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बनेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा और एक कौन देगा, कार्बन. तो इसी को हम इलेक्ट्रॉन डॉट फॉर्मूला कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते वक्त हमें इसी बात का ध्यान देना होता है कि जहां सिंगल बॉन्ड है वहां पे तुम्हें दो डॉट्स बना देने हैं. ये बहुत आसान है, बहुत आसान बच्चों. और ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में भी मैंने दो डॉट बना दिए, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में भी ये लो मैंने दो डॉट बना दिए. ठीक है बच्चों, तो ये हुआ स्ट्रक्चर. अब मुझे लास्ट वाटर की तरफ आगे बढ़ना है. तो वाटर के लिए मैं यहाँ पे डी वाटर की बात कर रहा हूं बच्चों. वाटर having molecular formula H2O, oxygen is linked with two hydrogen atoms. और एक बात का ध्यान देना बच्चों, water is an angular molecule. वाटर कैसा होता है, एंगुलर होता है. इसके बीच में 104.5 का एंगल होता है, 104.5 का एंगल होगा. ठीक है, तुम्हें ये वैल्यू याद करने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये स्ट्रक्चर जब भी तुम बनाओ इसको थोड़ा सा एंगुलर आप बना दोगे. बच्चों ये जो ऑक्सीजन एटम है ये हाइड्रोजन के साथ जब कनेक्ट हो रहा है तो कोवैलेंट बॉन्ड्स को हम डॉट से दिखा देते हैं. ये हुआ बच्चों वाटर मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है, तो यहां पर हमने अपना ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट किया. अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों. इन दिस क्वेश्चन दे आर आस्किंग ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड्स फ्रॉम देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन बिलो. They have given us a formula that is C3H8. और जब कभी भी बच्चा ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे सामने आए तो पहला काम आपको ये करना है कि ओनली कार्बन एटम्स को अरेंज करने के बारे में आप सोचो. मैं कार्बन को देखो कितनी अलग तरह से अरेंज कर सकता हूं. एक तो ये अरेंजमेंट हुआ और दूसरा अरेंजमेंट इस तरीके से. लेकिन ये दोनों अरेंजमेंट भले तुमको दो अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में ये दोनों एक सिंगल ही स्ट्रक्चर है. ये स्ट्रेट ही माने जाएंगे, इसे भी हम एक स्ट्रेट ही चेन मानेंगे. तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों C3 को मेरे पास अरेंज करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है. हाइड्रोजन्स कहां रखने हैं वो खुद हमें पता चल जाएगा. हमें पता है कि एवरी कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड. जब कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो ये जो 3 प्लेसेस वैकेंट हैं वो फिल की जाएंगी, भरी जाएंगी हाइड्रोजन एटम से. ये इस तरीके से कंप्लीट हुआ C3H8.
एक ही स्ट्रक्चर पॉसिबल था, इसके सिवा दूसरा कोई स्ट्रक्चर यहां पॉसिबल नहीं है। अब बच्चों मैं B मतलब C4H10 की बात करता हूं। जैसा कि मैंने कहा है, जब तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया जाएगा और अलग अलग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने के लिए कहा जाएगा, तो पहला काम आप ये करो, कार्बन एटम्स को अरेंज करने के बारे में सबसे पहले आप सोचो। मैं 4 कार्बन एटम्स को, देखो बच्चों, ये एक तो स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर सकता हूं, ये एक अरेंजमेंट हुआ। दूसरा अरेंजमेंट, कार्बन एटम्स को मैं इस तरह से अरेंज कर सकता हूं। अब इसे मैं एक नया अरेंजमेंट मानता हूं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर देखो स्ट्रेट था, यहां पर स्ट्रेट स्ट्रक्चर है और वहां से एक ब्रांच निकल रही है। अगर कोई बच्चा इस कार्बन चेन को इस तरह से दिखाए, तो ये दोनों अलग अलग नहीं है, क्योंकि कार्बन नीचे है या ऊपर है इससे फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा हाथ नीचे है या मैं हाथ ऊपर किया हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मैं ही हूं। लेकिन ये दो स्ट्रक्चर्स अलग अलग माने जाते हैं, बिकॉज यहां पर कार्बन की स्ट्रेट चेन है और यहां पर कार्बन की ब्रांच्ड चेन है, और ब्रांच, ये वाली कार्बन जो आ रही है वो ब्रांच मानी जाती है। सो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3। अगर मैं नंबर दूं तो यहां पर सेकेंड कार्बन से ब्रांच आ रही है, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, इसलिए ये स्ट्रेट चेन है और ये ब्रांच्ड चेन। तो बच्चों, हम इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लेते हैं। C4H10 का मतलब ये हुआ कि 4 कार्बन्स को आप अरेंज कर लो, और तुम्हें पता है कि एवरी 1 कार्बन मेक्स 4 बॉन्ड। तो ये कार्बन के देखो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं तुम्हें, 1 2 3 4। सब जगह पर जहां भी वैकेंसी है, जो बॉन्ड खाली है, वहां पर हमने क्या रखना होता है, हाइड्रोजन। याद रखिए, जहां खाली है वहां क्या रखते हैं, हाइड्रोजन। अब इस कार्बन के 4 बॉन्ड में से ये 2 बॉन्ड तो हमें पता है कि यहां पर कनेक्ट हो चुके हैं, ये 2 बॉन्ड खाली हैं, अभी वैकेंट हैं। तो ये वैकेंट बॉन्ड्स को हम हाइड्रोजन से लिंक कर लेते हैं, फिल करेंगे, इसे भी हाइड्रोजन से ही फिल करेंगे। यहां पर देखो ये बॉन्ड फिल हो चुका है ऑलरेडी, है ना, कनेक्टेड है देखो कार्बन से। बची हुई जगह पे हाइड्रोजन एटम्स को हम रख देंगे। अब उसके बाद वही काम बच्चों हम यहां भी करेंगे, ये हाइड्रोजन यहां पे फिल करेंगे। इस कार्बन के लिए आप ध्यान दो, ऑलरेडी इसने अपने 3 बॉन्ड कंप्लीट कर लिए हैं, और ये यहां पे 4th बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। इस कार्बन एटम के रिमेनिंग 3 बॉन्ड्स को भी मैं हाइड्रोजन से फिल कर दे रहा हूं। अब ये वाला कार्बन जो बच गया है उसे भूलना नहीं है हमें, उसके लिए भी हमने 3 हाइड्रोजन रख दिए। तो बच्चों यहां पे तुम ध्यान दो कि हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 3 9 एंड 1 10, और हाइड्रोजन 10 हो गए। अब कार्बन की बात करेंगे हम, 1 2 3 एंड 4। ये 4 कार्बन हमने यहां लिख दिए।
तो C4H10। अब उसी तरह से बच्चों हम C मतलब C3H4 वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। C3 का मतलब ये हो गया 3 कार्बन, और 3 कार्बन्स को बच्चों जब तुम अरेंज करते हो इस तरीके से या इस तरीके से, वो एक ही बात हो गई। क्योंकि ये जैसे कोई धागा है, मान लो वो धागा देखो स्ट्रेट भी मैं रखा हूं तो भी वही है, और उस धागे को थोड़ा फोल्ड कर दो तो भी वही है, क्योंकि इसको मैं नीचे की तरफ भी ला सकता हूं। इसे मैं ब्रांच नहीं मानूंगा, लेकिन इसको हम हमेशा ब्रांच मानते हैं। अगर मान लो इस तरीके का स्ट्रक्चर रहता तो ये बॉन्ड आप कुछ भी कर लो, जब तक आप ब्रेक नहीं करोगे तब तक ये उस जगह नहीं पहुंचेगा। तो इस बारीक फर्क को आप समझो। अगर स्ट्रक्चर ऐसा रहेगा तो बड़े आराम से तुम उसको स्ट्रेट कर सकते हो, लेकिन यहां से आप स्ट्रेट कहां कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। इसलिए इसे ब्रांच कहा जाता है, लेकिन इसे ब्रांच हम नहीं कहेंगे। यही कार्बन यहां से हटा के अगर मैं यहां रख दूं, अब ये ब्रांच बन गया, क्योंकि इसको आप बिना ब्रेक किए स्ट्रेट कर नहीं सकते हो, जबकि इससे मैं ऐसे स्ट्रेट कर सकता हूं। बहुत आसानी से इससे समझ सकते हो। एक धागा समझो कि एक धागा जैसे इसे लिखा है, रख दिया है, फिर उसी थ्रेड को मैंने ऐसे कर दिया, फिर आप सीधा भी कर सकते हो। लेकिन अगर वही चीज यहां पर बांधी है तो जब तक आप इसको ब्रेक नहीं करते हो तब तक ये स्ट्रेट नहीं बनेगा। तो इसलिए ये ब्रांच है, लेकिन ये ब्रांच नहीं है। अब जब बच्चों ये दो स्ट्रक्चर वही एक ही चीज है तो हम उसे दो नहीं मानेंगे, एक ही ड्रॉ करना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसने आपसे कहा था कि ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। कौन कौन से अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं वो लिखो। तो हमने C3 का एक ही अरेंजमेंट पॉसिबल है, इसके सिवा नहीं। H4 का मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, ये जो फॉर्मूला है C3H4, ये क्या बता रहा है, किस ग्रुप पे ये जा रहा है, जरा देख लेते हैं। अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। अल्काइन है बच्चों CnH2n-2। तो अगर मैं C3 लिख लू, 2 into 3 minus 2 के हिसाब से, 3 2 जा 6 and 6 minus 2 4। तो ये किसको, ये किस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर रहा है, अल्काइन को। अल्काइन के फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, अल्काइन का। अल्काइन का फॉर्मूला मतलब एक जगह पर कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड आ जाएंगे। तो जब हम कार्बन के बच्चों ये ट्रिपल बॉन्ड लिख लेंगे, अब जितनी भी जगह खाली बच रही है उस हर खाली जगह को हाइड्रोजन की मदद से फिल करना है। यहां पर मैं एक हाइड्रोजन लिखूंगा, यहां पर देखो 1 2 3 और ये 4, मतलब इस कार्बन के पास कोई भी खाली जगह नहीं है। इस कार्बन ने अपने चारों बॉन्ड कंप्लीट कर लिए। अब हम इस कार्बन की तरफ आते हैं। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड कंप्लीट किया है। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड कंप्लीट करता है। तो ये एक बॉन्ड फिल करने के बाद बाकी की जो 3 जगह खाली है वहां पर हम हाइड्रोजन को पुट कर लेंगे। तो इस तरीके से देखो, ये फॉर्मूला हो गया C3 और H4। यहां पर बच्चों यही एक स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसके सिवा दूसरा कोई स्ट्रक्चर हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इन बच्चों इस स्ट्रक्चर्स को लिखकर आप अच्छे से आगे बढ़ेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में वो आपसे पूछ रहे हैं
कि राइट द IUPAC नेम of the following structural formulae. We have to write the IUPAC name. So let's begin with the first one, A, which is CH3, CH2, CH2, CH3. बच्चों, while writing the IUPAC name, you have to select the longest chain. जो सबसे बड़ी चेन है वो सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पे खाली एक ही चेन है, उसे हमने सिलेक्ट कर लिया. अब इस चेन में कितने कार्बन है काउंट करो. 1 2 3 4. देयर आर 4 कार्बन एटम्स. सो वी विल राइट द नेम ब्यूटेन. व्हाट इज दैट नेम? ब्यूटेन. सो IUPAC नेम क्या हुआ इसका? ब्यूटेन. बिकॉज 4 कार्बन के लिए क्या नाम रहता है बच्चों? ब्यूटेन. नाउ लेट्स मूव फॉर द बी. बी वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है बच्चों. CH3, CH, CH3, OH. देखो ये OH जो है ना, वो यहां पे लिखा होने का मतलब ये हुआ कि ये OH किसको कनेक्टेड है? इस कार्बन को कनेक्टेड है. ठीक है ना. यही स्ट्रक्चर लिखने का ये तरीका है. OH जो यहां लिखा है ये बता रहा है कि इस कार्बन को एक तरफ से हाइड्रोजन कनेक्टेड है और एक तरफ से OH कनेक्टेड है, और यहां पे क्या है? CH3. तो ये पहले स्ट्रक्चर आपने अच्छे से पहचानना है. अब उसके बाद इसका IUPAC नाम जब हम लिखेंगे तो पहला काम ये करना है कि आप सबसे बड़ी कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो. क्या करो बच्चों? सबसे बड़ी कार्बन चेन सिलेक्ट करो. जब बच्चों हम सबसे बड़ी कार्बन चेन सिलेक्ट करते हैं तो इसके नंबर आ जाएंगे 1 2 एंड 3. सेकेंड कार्बन पे जो ये OH आया, ये कहां आ रहा है? सेकंड पे. और टोटल कितने कार्बन है यहां पे? 3. बच्चों 3 कार्बन के लिए करिस्पॉन्डिंग अल्केन. फॉर 1 कार्बन के लिए हमारे पास नाम क्या होता है? मीथेन. फॉर 2 कार्बन वी राइट व्हाट? इथेन. एंड फॉर 3 कार्बन वी राइट प्रोपेन. देन वी राइट butane, and then we write pentane. अब बच्चों 3 कार्बन सिस्टम के लिए हमारे पास क्या नाम है? देखो, प्रोपेन. सो प्रोपेन E should be replaced by propane 2-ol. देखो बच्चों, ये मैंने क्या लिखा यहां पे? E की जगह पे OL लिखा. OL क्या बता रहा है? अल्कोहल. अल्कोहल से हमने क्या लिया यहां पे? OL लिया है. ये OL ले लिया. सेकेंड क्यों आया यहां? हमने 2 क्यों लिखा? बिकॉज ये सेकेंड पर अटैच है, ये बताने के लिए हमने यहां पे 2 लिखा. तो इस तरीके से ये नाम कंप्लीट हुआ. अब क्वेश्चन ये भी कोई पूछेगा कि सर प्रोपेन कैसे पता चला? क्योंकि हम यहां देखेंगे कि कितने कार्बन है. यहां पे 3 कार्बन है ना बच्चों. तो 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो क्या लिखा है बोलो? प्रोपेन. तो प्रोपेन मैंने यहां पे लिखा. ई की जगह पे OL लिखा है, 2OL. तो ये बन गया प्रोपेन 2-ol. ठीक है. अच्छा बच्चों, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं.